रोलिंग गुड टू सी यू पवित्रा. बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपको देख के. इस फिटनेस का राज. इस फिटनेस का राज है बिग बॉस. तो थैंक यू सो मच. क्या मतलब ऐसा क्या खास हुआ वहाँ की इतने इतने सीरियसली ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और ऑन अ वेरी सीरियस नोट यू लुक सो फिट. Yeah, see, what happens is कि बिग बॉस में जब हम सब कंटेस्टेंट्स होते हैं ना तो there is a limited amount of food that you consume there and as सबको पता ही है, सब लोग बिग बॉस देखते हैं कि वहाँ पे लग्जरी आइटम्स जैसे कॉफ़ी, घी, ब्रेड्स, जैम, ये सब कुछ अर्न करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है. तो मैं वो अर्न कर नहीं पाई कि मैं कैलोरीज थोड़ी सी और टेक ओवर कर सकूँ. सो आई वॉज जस्ट हैविंग नॉर्मल फूड, राइट, लाइक rice, chapatis, and small portion of sabzi and all. So yeah, I'm fit, thanks to Big Boss. टेल अस अबाउट द फोटो शूट. यहाँ So today I'm shooting for the wedding mantra. Sorry. हाँ. या So today I'm shooting for the wedding mantra by Garima Sinha. और बहुत मज़ा आ रहा है. वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ, बिकॉज वेडिंग मंत्रा नाम से ही पता चलता है कि बहुत शादी वाला माहौल रहता होगा इस मैगजीन के अंदर. दुल्हनें दिखाते होंगे कि हाउ ब्राइड कैन डेक अप हर सेल्फ, यू नो, कैसे तैयार हो सकती हैं, कि अलग अलग वेरिएशंस के लुक अपनी मेहंदी, संगीत, कॉकटेल एंड फेरों पे कर सकती है. तो कुछ वैसा ही आज मैं भी ट्राई कर रही हूँ दी वेडिंग मंत्रा में. कुछ ऐसे ही मेहंदी वाले लुक एंड ब्राइडल लुक्स. सो let's see how beautiful I'm going to look. I have no idea. व्हाट इज योर वेडिंग मंत्रा. What is my wedding mantra? जब होगी तो बताती हूँ. अभी तो नहीं. But yeah, I'm gonna look like those typical brides, na, those Rajasthani Sabyasachi brides. I love Sabyasachi looks and everything. तो I'm gonna wear something like that only. पवित्र, जैसे आपने कहा कि बिग बॉस में बड़ा नपा-तुला खाना मिलता था, आपको जीतना पड़ता था, आपको हासिल करना पड़ता था. तो इसका मतलब है इसको फिट होना है, किसी ट्रेनर की बजाय बिग बॉस चले जाओ. ये आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी अगर आप बिग बॉस चले गए तो. बहुत अच्छी किस्मत होगी. जाओ, मैं तो बोलती किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं, आप बिग बॉस जाओ. लिमिटेड खाना, बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे टास्क, आपकी सारी कैलोरीज बर्न हो जाएंगे एंड यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग. रिलैक्स. ओके, व्हाट यू हैव लर्न व्हाइल योर स्टे इन बिग बॉस हाउस. You know, there are a lot of things in Big Boss house that happens in matter of fights, in matter of beautiful moments and memories that you like encash in there. One thing that I have personally learned is if there is a action, how to react in a like normal way, because I'm a person, if you will react, like if you'll act in a very loud way, I'm like super reactive to that. So I've learned one thing, that one needs to have some amount of patience in life and do not trust anyone so easily. How's life changed post Big Boss? Oh, amazingly changed. I think after Big Boss, the amount of work, the amount of projects I'm getting, that is so beautiful, because of course everyone knows that Big Boss is a platform where it gives a boost to your career. It's like a fuel to your career. So that is what I'm enjoying right now. Okay, what next? What's happening on professional front? Professional front, there's few things that are lined up with the web series and all. I cannot disclose much about it, but yes, of course, a lot of music videos also. So you'll be like keep on seeing Pavitra Punia now for a whole year. बड़ा री-एंट्री का दौर चल रहा है बिग बॉस में. Is there a possibility we'll see you back? Oh yes. I am thinking of, but I won't be able to, because there will be a clash of other projects with the entry of mine. Because if I'll go now as a wildcard contestant in Big Boss House, then it's going to be like those nice one and a half 2 months, you can say, possibly, because everyone knows that Big Boss has got extension now. So I don't know really, I have no idea whether for how long I'll be stuck inside. So I'm just still giving a thought about it, whether I shall proceed towards the wildcard entry or not. But I don't think so I'll go. Let's see, but I don't know if I'll change my mood. I'm a very moody girl. आप देख रही हैं, फॉलो अप कर रही हैं, और क्या आपको अब क्या नजर रखते हैं, सारे नए चेहरे आ गए हैं,
अभी बहुत घर का जो माहौल हो गया बिग बॉस के घर का, वो बहुत ही ज़्यादा ना तबाही वाला हो गया। मतलब हर कोने में तबाही है, हर कोने में लड़ाई झगड़ा है। एंड आई एम अ पर्सन हु लूज आउट पेशेंस लाइक सो ईजली, सो द ओनली रीज़न दैट आई एम थिंकिंग टू गेट इनसाइड एट दिस मोमेंट और नॉट। एंड अभी भी एनी विच इज़ बहुत बड़े लास्ट सीजन्स के भी दिग्गज और तुर्रम का आ गए अंदर, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस है थोड़ा सा अंदर माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। So it's better to stay outside right now and not to enter inside, but still I'm saying I'll think about it whether to enter in the house or not again. whom do you want to see as a winner? I would want Ejaz to win the show, honestly, because he's been proving himself. So hoping for the best. Top 2 I see, of course. Top 3 now I see that Vikas, if he's coming back. If not Vikas, then Rahul, Rubina, and Ejaz. These 3 I see in top 3. Okay, given a choice, whom do you want to work opposite you? Actor, Ranveer Kapoor or Ranveer Singh? Ranveer Singh. Okay, a director, Rohit Shetty or Farah Khan? यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, पर मैं दोनों के साथ काम कर लूँगी थोड़ा थोड़ा सा। रोहित शेट्टी फरहान दोनों के साथ मेरे को ले लेना। क्या मिस कर रहे हैं बिग बॉस में? बिग बॉस की लड़ाइयाँ बहुत मिस कर रही हूँ मैं। मेरा जो वहाँ पे यू नो आई हैड वेरी फ्यू लाइक नो in fact I had a lot many famous dialogues in Big Boss. तेल लेने जाओ and all that, so I'm missing out that dialogue of mine, तेल लेने जाओ। तेल लेने गए, हमें क्या करना है? So yeah, I'm missing that. Thank you so much, Pavitra. Thank you so much, thank you. Rolling. Silence. So good to see you. Thank you. मेरी शादी, यार मैं तो तैयार हूँ चटमगनी पट ब्याह करने के लिए, लेकिन बस इंतज़ार हो रहा है। किसका? लड़के का तो लड़का कहाँ है? आ जाएगा, अपने काम में व्यस्त होगा कहीं पे। चलो प्रीटी, मतलब लग रहा है कि दुल्हन हो तो ऐसी हो। जानना चाहूँगा एवरीथिंग, कॉस्ट्यूम, आपके गहने, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। टेल अस अबाउट इट कि क्या एग्जैक्टली है, क्या शादी हो भी रही है या कुछ और? यार देखो, दुल्हन एकदम तैयार है मंडप में बैठने के लिए, तो बस लड़के का इंतज़ार है। और रही बात कपड़ों की, तो आप देख रहे हैं चूड़ा वड़ा भी पहन लिया। मतलब पता नहीं पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा, लेकिन मैंने पहन लिया चूड़ा। एंड दिस लहंगा, ऑफ कोर्स दिस अटायर इज सो ब्यूटीफुल। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपनी शादी में कुछ चढ़कता भड़कता पहनूंगी, लेकिन पेस्टल, मतलब ये जो इतना लाइटर शेड, पीचेस जो मैंने पहना है रेड के साथ मिक्स, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग आउटफिट है। तो आई एम श्योर कि अब मैंने थोड़ा सा अपना बदल दिया है नज़रिया, कि जब लड़का आ जाएगा तो मैं कुछ ऐसा ही शेड पहन के बैठूंगी। अभी तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। एंड दिस ज्वेलरी, ऑफ कोर्स वेरी ब्यूटीफुल ज्वेलरी। मुझे राजस्थानी लुक्स बहुत पसंद होते हैं, वो जो एकदम सब्यसाची ब्राइड्स होती है ना, ये लकीली ये सारी की सारी ज्वेलरी वो वैसे की वैसी है। तो ये ले, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं अपनी शादी में कैसी लगूंगी, असली वाली शादी में, तो मैं बिल्कुल ऐसी ही लगूंगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही पहनने वाली हूँ। The photo shoot is happening for the magazine, the Wedding Mantra. Oh, the photo shoot is happening today for the magazine, The Wedding Mantra by Garima Sinha. उन्होंने ही मुझे ढूंढ के निकाला फूल की तरह बिग बॉस से बाहर आते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना जनवरी 2021 साल की शुरुआती की जाए पवित्रा पूनिया को द वेडिंग मंत्रा के कवर पेज पे चिपका के। एंड ऑल थैंक्स टू गरिमा सिन्हा कि उन्होंने एक्चुअली मुझे, बिकॉज एवरीवन नोज दैट आई हैव दिस टॉम बॉयज, दैट लौंडा वाला थिंग, एंड शी एक्चुअली थॉट ऑफ मेकिंग मी दिस ब्राइड, एंड आई एम माई सेल्फ लुकिंग वेरी लाइक आई एम एक्चुअली लुकिंग ब्यूटिफुल। सो या, थैंक्स टू द वेडिंग मंत्रा एंड गरिमा। Okay, Putra, what are the 3 things you look into, whenever you associate yourself with any brand, or what's your, your keep in mind कि इसलिए जुड़ना है? किसी ब्रांड के साथ? Yes. See the quality the brand has, first thing, the work they do, of course, and thirdly, जो warmth होती है ना, जब भी किसी ब्रांड की तरफ जाओ ना, तो हमेशा I believe in this thing that even if I'm wearing this lehenga, even if I'm going to be on that magazine, so there is
नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो टॉक्स. तो मुझे वो जब अपनापन लगाव फील होता है तभी मैं किसी चीज़ के लिए हाँ भरती हूँ. एंड दिस मैगजीन इज सच दैट आई फेल्ट द कनेक्ट एंड आई फेल्ट द वार्मथ. आई वाज लाइक, एंड देयर वाज नो नथिंग जस्ट कि मैं मना कर पाती. तो ये तीन चीज़ें बहुत मुझे वो करती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका लाइक ब्रांडिंग कैसी है, एंड तीसरी चीज़ कि उसमें वार्मथ कितनी है. What was the first reaction the moment Garima asked you to be on board? रियली बहुत मुश्किल होता है ना आपको ढूंढना, हम इंटरव्यू के लिए ढूंढ नहीं पाते. यही था, यही था. रियली नंबर कहाँ से मिला? But no jokes apart, when Garima approached me first time when she asked me, because मेरे पास honestly इससे पहले कभी ब्राइडल लुक्स के कभी भी मुझे ऐसे प्रपोजल्स नहीं आए हैं. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज शॉक्ड बाय माई सेल्फ. लाइक रियली मैं ब्राइड, वो भी कवर पेज, कुछ गड़बड़. बट देन देयर वाज नो गड़बड़ एंड इट वाज द फैक्ट. एंड देयर वाज नो पॉइंट ऑफ सेइंग नो टू हर, बिकॉज जैसे कि कहा कि वो वार्मथ. सेकेंडली कि मैंने कभी ऐसा कुछ शूट नहीं किया ब्राइडल वेयर में, तो मना करने का सवाल नहीं था कुछ भी. पवित्रा, यहाँ शादी की बात हो रही है, दुल्हन बनने की बात हो रही है, आप दुल्हन दिख भी रही है, वो बहुत खूबसूरत दुल्हन दिख रही है. क्या क्वालिटी देखती हैं आप होने वाले हस्बैंड में, अगर जब भी जीवन में आप किसी का हाथ पकड़ेंगे या शादी? थोड़ा सा रूथलेस. थोड़ा सा रूथलेस, अंडरस्टैंडिंग, और बस थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत रोमांस कर ले. तीन चीज़ें. किसमें है क्वालिटी? यार तुम मतलब घुमा फिरा के लोहा गर्म होते ही जो मारने की कोशिश करते हो ना. देखिए ये क्वालिटी जिसमें ना अगले साल ही पता चल जाएगा. सस्पेंस से मतलब चलो मैंने इतना ही बता दिया, अगले साल आपको पता चल जाएगा किसमें ये क्वालिटी. नेक्स्ट ईयर गेटिंग मैरिड, दिस व्हाट. यू नेवर नो. ओके, बिग बॉस को लेकर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा. जो भी हाल फिलहाल में हुआ, विकास गुप्ता की माता जी को लेकर जो अर्शी ने कहा, उस पर सलमान भी बहुत नाराज हुए वीकेंड के बाद. उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? सी आई ऑलवेज बिलीव कि कभी भी किसी को कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशंस हो, बिलो द बेल्ट जाके घर वालों के ऊपर पॉइंट आउट करके किसी की निजी ज़िंदगी में घुस के किसी के लिए कमेंट ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है. और मैं ऐसी ही इंसान हूँ कि अगर मेरे ऊपर भी कोई कमेंट करे तो मैं कभी भी उस चीज़ का पलट के जवाब नहीं देती, क्योंकि निजी ज़िंदगी में कभी भी घुसना ठीक नहीं होता. उनकी पर्सनल लाइफ है, तो जो भी डील करना है सोशली करें या फिर काम से रिलेटेड करें, जो भी करना है. वो जो चीज़ विकास के साथ हुई, जो अर्शी ने की, वो बहुत गलत थी. कभी भी घर वालों को उस चीज़ में ना लेके आएँ. एक चीज़ की एक हद होती है, एक मर्यादा होती है. इनफैक्ट आप गुस्सा भी करते हैं, आप क्राइम भी करें ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये भी बोलूँ, तो वो करने से पहले भी एक मर्यादा, एक लिमिटेशन देखी जाती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं या फिर इससे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. आप जब पब्लिक फ्रेम में रहते हैं, आप जब पब्लिक इमेज में होते हैं, आई एम श्योर कि अर्शी के भी बहुत सारे आइडल्स होंगे, फैंस होंगे, फॉलोअर्स होंगे. तो जब वो लोग इतनी भरी आबाद जो आवाम जो बोलती हैं, तो जब वो आवाम ऐसे चीज़ें देखती है ना, तो वो भी कोशिश करती है कि हम भी यही चीज़ करें. और क्योंकि हमारे आइडल ने ये चीज़ की तो ये सही होगी, लेकिन वो चीज़ गलत है, क्योंकि आप इससे सोशल जो एनवायरनमेंट है या फिर आप लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं, आप लोगों को गलत राय दे रहे हैं, उनको वो चीज़ गलत होती है. तो मेरे हिसाब से जो भी हो वो गलत हुआ. एंड विकास ने जो किया वो सही किया, क्योंकि वो आई ऑलवेज सेज कि एक लाउड एक्शन का हमेशा एक सुपर लाउड रिएक्शन निकलता है. एंड ऑफ कोर्स फैमिली एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि सलमान सर ने भी वीकेंड के वार पे बोला कि फैमिली के ऊपर शायद वो भी होते या कोई भी होता, मैं भी हूँ, इनफैक्ट आप लोग भी हों, आम जनता भी हो, वो भी चीज़ नहीं ले पाती. तो इसलिए पहली चीज़ तो उस चीज़ पे जाओ मत, और जाओगे तो उसके जो रिएक्शन होंगे उसके लिए रेडी रहना चाहिए. तो वो चीज़ बहुत गलत थी. आई विल नॉट अप्रिशिएट दैट. री एंट्री का दौर चल रहा है, क्या आप भी वाइल्ड कार्ड एंट्री करना चाहेंगे? मैं सोच रही हूँ, लेकिन शायद मैं ना जाऊँ. क्योंकि ओनली फॉर द रीज़न, मैं इसलिए सोच रही हूँ, मैं चली जाती, लेकिन ना जाने का इसलिए सोच रही हूँ बिकॉज जो अलग दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो पाइपलाइन में हैं, उनके साथ डेट्स क्लैश हो जाएंगी. क्योंकि सबको ही पता है कि एक्सटेंशन हो गया है, तो यू नेवर नो, अगर मैं वहाँ पे 2 महीने 1.5 महीने गई तो यहाँ पे जो कमिटमेंट्स अभी हो गई हैं वो रुक जाएंगी. तो मुझे वो डेट्स देखनी पड़ेंगी. एल्स आई वुड हैव गॉन. थैंक यू सो मच. थैंक यू.